Today we are going to discuss about the topic types of natural resource. So before going to describe about natural resource, first we will talking about resource, या इसे हिंदी में बोलते हैं संसाधन. So resource is a type of natural environment and it is a part of natural environment which is useful for the welfare of the human beings. So we can say that resource may be the things which satisfy the needs of the human beings. अगर हम हिंदी में बात करें संसाधन की, तो संसाधन ऐसे प्रकृति के द्वारा या मनुष्य के द्वारा प्रदत्त ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे संसाधन हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करती है. These are very valuable. For example, if we are thirsty, so what we use? We drink water. अगर हम प्यासे हैं तो हम क्या करेंगे? हम पानी पिएंगे. तो पानी क्या है? ये हमारी नीड है जो हमें सेटिस्फाई करती है, थर्स्ट को, हमारी प्यास को बुझाती है. सो वाटर इज़ अ टाइप ऑफ रिसोर्स. वी ब्रीथ with the help of air, mainly oxygen, with the help of oxygen. So this is the resource. Electricity हम use करते हैं. So electricity is the resource. So the resource are those things which satisfy the human needs, and these are the part of the environment. They may be water, they may be air, it may be forest, mineral. So all these are the part of the resource. Now the resource can be classified into two types. First type, when we talk about man-made resource. Man-made resource means those resource which are made up by the human activities. So there is the involvement of the human beings. This is called as the man-made resource. For example, vehicles, formation of different kind of machines. So this was not done by nature. This was done with the help of nature, but it is not done by the nature. Aquarium. So these crop production, transport system. So all these are the part of the man-made resource. Now we come to our next part. That is main part. The other type of resource is natural resource. Natural resource, those resources which are obtained by the nature and useful for the human beings. That is called as the natural resource. हिंदी में अगर हम बात करें तो संसाधनों को दो प्रकारों में बांट सकते हैं. पहला जो टाइप है वो है ह्यूमन मेड या मनुष्यकृत संसाधन, जिनको कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है. ऐसे संसाधन मनुष्यकृत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि यातायात या मशीनों का निर्माण या एक्वेरियम का निर्माण जो कि मनुष्य ने कृत्रिम रूप से बनाया है, उसे बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स, मनुष्यकृत संसाधन. और दूसरा जो संसाधन है वो है प्राकृतिक संसाधन, जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है और मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज वेरियस कैटेगरीज. अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो हम अलग अलग आधारों के आधार पर किस प्रकार उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. तो पहला जो टाइप है नेचुरल रिसोर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण. तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं. पहला टाइप है बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक. यानी बायोटिक मीन्स बायोटिक इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स. It is related to all the living things which can be animals, which can be forests, which can be microorganisms. And abiotic, it is related to non-living things. अर्थात उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन. जैविक संसाधन में इट इंक्लूड ऑल द बायोस्फीयर पार्ट्स एज वेल एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड समथिंग which are dead remain parts of animals which buried inside the soil, that are called as the fossil fuels like petroleum, coal. So all these are the part of the biotic natural resources. Second is abiotic natural resources, those resources which are non living, जो कि अजीवित हैं, जीवित नहीं हैं, and those resources which are useful, they are valuable, that are called as the abiotic natural resource. For example, water, minerals, air, sunlight, all are the example of abiotic natural resource. Now we comes to the second point, on the basis of stage of development. It can be divided into three types. First is actual, second is potential, third is stock natural resource. So actual means
they are useful in present time and their exact quantity is surveyed. For example, if there in a rock there is a particular uranium is known or particular type of any natural resource is known, that is called as the actual नेचुरल रिसोर्स, अर्थात उसकी क्वांटिटी हमें पता है कितना क्वांटिटी में टोटल अर्थ पे वो अवेलेबल है और उस हिसाब से ह्यूमन बींग उसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल. पोटेंशियल मीन्स वी नो दैट देयर मे बी अ लॉट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स इज प्रेजेंट बट दे विल बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर, दैट इज़ कॉल्ड एज द पोटेंशियल. हमें पता है कि हाँ बहुत सारा उपलब्ध है लेकिन हमें फिक्स क्वांटिटी नहीं पता है उस नेचुरल रिसोर्स की और फ्यूचर में हो सकता है कि हमें उसको हम यूज़ कर सकें. थर्ड होता है स्टॉक रिसोर्स. स्टॉक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज कैन बी सर्वेड बट ड्यू टू द लैक ऑफ दी वेरियस मशीन्स की डेवलपमेंट नहीं होती है या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस वजह से हम उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं स्टॉक नेचुरल रिसोर्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सर्वे हो चुका है, उसका सब पता कर चुके हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट प्रॉपरली यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. So this was the second basis of the classification of the natural resource, which is on the basis of development. Third type, on the basis of renewability. On the basis of renewability means कैसे उसका पुनर्निर्माण होता है या नहीं होता है. These can be divided into two parts, renewable and non-renewable. Renewable means re यानी बार बार, re means again and again. So those resources which can be used again and again और उनका एक अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रेजेंट है अर्थ पे, तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे रिसोर्स जो कि असीमित इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और हम जितना चाहें उनका यूज़ कर सकते हैं, वो पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं. और सेकेंड टाइप है नॉन रीन्यूएबल. नॉन मीन्स those materials which are limited quantity, in limited quantity, and once they empty, they're not being new convert into new, or it makes a lot of times for making them, so that will be called as a non renewable natural resource, जो कि पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा अगर वो पृथ्वी से एक बार समाप्त हो गए तो उनका पुनर्निर्माण में हो सकता है लाखों करोड़ों वर्ष लगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी अर्थ पर प्रेजेंट है और एक बार अगर ये समाप्त हो गए तो उनको वापस पुनः निर्माण में बहुत ज़्यादा अधिक समय लगेगा. सो रीन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल हो सकते हैं वाटर, सनलाइट, इट इज़ रीन्यूएबल सोर्स, एयर, इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स, एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द नॉन रीन्यूएबल सोर्स. नाउ द फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. उनकी उपलब्धता के आधार पर कि कोई नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं, दोज आर कॉल्ड एज यूबिक्विटस नेचुरल रिसोर्स. यूबिक्विटस मीन्स ऐसे रिसोर्स जो कि सर्वत्र व्याप्त हैं. व्हाट आर दीज रिसोर्स? फॉर एग्जांपल एयर, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो यूबिक्विटस टाइप ऑफ सनलाइट, द अदर एग्जांपल इज सनलाइट. सो ऐसे संसाधन जो सर्वत्र व्याप्त हैं जैसे हवा और सूरज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्स ऑफ. सेकेंड इज लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लोकल प्लेस. They do not present everywhere. For example, if we are talking about some particular minerals, coal, minerals like iron and copper, so what happens? These iron and copper are present in a particular area, so they will be localized. So according to availability, उपलब्धता के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं. पहला है सर्वत्र पाए जाने वाले तथा दूसरा है एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में पाए जाने वाले. फिफ्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. क्षयशीलता के आधार पर, अगर हम उनकी क्षयशीलता के आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो नेचुरल रिसोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मीन्स क्षयशील प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो कि अगर हमने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, if we do not do proper management of the natural resources, what happens?
It may be that they will be damaged or destroyed. So these are called as the exhaustible natural resource. Or inexhaustible means they are present in unlimited quantity and man's activity do not harm them. For example, sunlight. So if we are doing pollution, so there is no effect of sunlight is done. But if we are doing the pollution, water can be water quality will be decreased. So exhaustible means क्षयशील. वाटर जो है वो क्षयशील का उदाहरण होगा. क्यों? क्योंकि हम मनुष्य अगर उसका मैनेजमेंट नहीं करेगा तो वाटर की क्वालिटी डैमेज हो सकती है. एयर पॉल्यूशन कैन बी कॉज ड्यू टू इफ एयर क्वालिटी विल बी डिक्रीज. एंड इनएग्जॉस्टिबल मीन्स फॉरेस्ट क्वालिटी विल बी डिक्रीज. एंड इनएग्जॉस्टिबल इट मीन्स if there will be no human activities work on them, that will be called as the inexhaustible natural resource. So in this class we discuss about the whole classification of the natural resource. Thank you.